Hello everyone. So today we are going to start the next part of chapter 1, reproduction in organisms, right? So what we did in the previous class, पहले हमने पढ़ा था like in reproduction, three different events are there: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Okay, pre-fertilization क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से पहले उस प्रोसेस को होने के लिए, लाइक फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, what processes have to be completed before the fertilization, that comes in pre-fertilization events, right? So in pre-fertilization events, two things were there: gametogenesis and gamete transfer. So what do you understand by gametogenesis? It is the process of formation of gametes. ये किसकी प्रोसेस है? It is the process of formation of gametes. Like it will occur separately in males as well as in females. दोनों में ही गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है? तो मेल के गैमीट्स क्या होते हैं? These are the sperms. And फीमेल के गैमीट्स क्या होते हैं? They are the ovum. Okay, so gametogenesis is required. Now, male बनाते हैं sperms. Male reproductive system is there. Reproductive system का जो part है, that is testis. So that testis produces the sperm, whereas in females, ovary produces the ovum. So in this diagram, what you are seeing, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ये जो आपको structures दिखाई दे रहे हैं, having a flagella, they all are the sperms, and this one, the large structure that you are seeing, this is an ovum, right? So let's study more about the gametogenesis, like how these gametes are formed. मैंने आपको बताया कि ये टेस्टिस में बनते हैं in males, sperms जो बनते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं. In case of females, ovums are formed in the ovary, right? Now how they are formed? Actually gametes भी क्या हैं? They are also cell. Gametes भी क्या है? They are also the cells. So how these cells are produced? Ploidy क्या है इनकी? Haploid होते हैं या diploid होते हैं? So let's talk about that. Cell division during the gamete formation, like how the cell divides or actually which division is there. तो cell division हमें पता है, एक तो होता है mitosis. Okay, one division is mitosis and second division is meiosis. Okay, mitosis क्या है? जो कि somatic cells में होता है. It occurs in somatic cells, right? meiosis किस में होता है? meiosis होता है germ cells में. So meiosis occurs in germ cells. Okay, now gametes are haploid. One thing, that point you have to note down, that gametes are always haploid. Gamete हमेशा haploid ही होंगे. But the parent plant body from which they arise may be either haploid or diploid. मतलब जिस पेरेंट से वो गैमीट्स फॉर्मेशन हो रहा है वो हैप्लॉइड भी हो सकता है और वो डिप्लॉइड भी हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ वन हैप्लॉइड पेरेंट इज देयर, okay, it is going to produce the gametes. So it is going to produce the gametes how? By the mitosis. ये किससे बनाएगा gametes? माइटोसिस के थ्रू बनाएगा. क्यों बनाएगा माइटोसिस के थ्रू? क्योंकि माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है. तो जो हैप्लॉइड है वो और हाफ कैसे होगा? ओके, तो यहां पर ये बनाता है गैमीट्स थ्रू द माइटोसिस. ओके, नाउ a haploid parent produces the gametes by mitotic division. However, the organisms having diploid body, like किसी की जो पेरेंट है वो क्या है? डिप्लॉइड है. ओके, सो दिस डिप्लॉइड पेरेंट will undergo
meiosis. This diploid parent will undergo meiosis, and what it is going to produce? It is going to produce the gametes which are haploid. Okay, so what you have to remember, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो गैमीट्स बन रहे हैं, डजंट मैटर वेदर द पेरेंट सेल जिससे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, डजंट मैटर, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे. ओके, बट द पेरेंटल सेल मे बी हैप्लॉइड और मे बी डिप्लॉइड. ठीक है, अब बात आती है सेल डिवीजन कि हैप्लॉइड सेल में कौन सा डिवीजन होगा, जो हैप्लॉइड पेरेंट है जो गैमीट बनाएगा उसमें कौन सा डिवीजन होगा. So haploid parent produces the gametes by mitosis, this one, whereas the diploid parent, it undergoes meiosis and produces the gametes. Mitosis is an equational division, whereas meiosis is a reductional division. Okay. Now, what is there in diploid organisms? Diploid organisms की बात करते हैं. In diploid organisms, some specialized cells are there. Like जो gametes बनाती हैं, what they are? They are the meiocytes. ठीक है, इन meiocytes को हम क्या कहते हैं? They are also called as gamete mother cell. क्यों कहते हैं हम इनको गैमीट मदर सेल? बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द गैमीट्स. कोई भी सेल जो नई सेल बना रही है उसको हम पेरेंटल सेल कहते हैं, मदर सेल कहते हैं. ठीक है, तो ये हो गई गैमीटोसाइट, गैमीटोसाइट्स और द मियोसाइट्स. ठीक है, मियोसाइट्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दीज सेल्स दे अंडरगो मियोसिस. ओके, मियोसिस क्या होता है? ऑलरेडी यू नो, इट इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन. जो जर्म सेल्स में होता है ऐसी सेल्स में होता है जो गैमीट्स बनाती हैं. तो यहां पर मियोसिस होगा और रिडक्शनल डिवीजन होगा. नाउ दीज मियोसाइट्स दे आर डिप्लॉइड. जो गैमीट मदर सेल है ये कैसी है? ये डिप्लॉइड है. ओके, डिप्लॉइड सेल अब जो गैमीट्स बनाएगी वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे. सो दीज आर हैप्लॉइड. ओके, नाउ what happens during the meiosis? Like at first division, two daughter cells are produced. Here you can see, ये है एक diploid mother cell. Okay, इसे आप मियोसाइट भी कह सकते हो. ये ह्यूमंस के केस में है. ओके, मियोसाइट और द गैमीट मदर सेल. ठीक है, कैसी है? डिप्लॉइड है. डिप्लॉइड है मींस 2n नंबर है इसका and 46 number of chromosomes, or you can also write it like that they have 23 pairs of chromosomes. 23 pairs becomes 26. Okay, now meiosis completed in two division. meiosis जो होता है वो दो divisions में complete होता है. ठीक है, now here is meiosis 1. So by the end of meiosis 1, two daughter cells are produced. Okay, see, if it is a cell and it undergoes meiosis 1, it produces two daughter cells which are haploid. Okay, now when they undergoes meiosis 2, again they each produce two daughter cells. So by the end of meiosis, how many daughter cells we get? We get 4 daughter cells. We get 4 daughter cells. So what they all are? They all are the haploid gametes. Okay. Now what is written? At the end of the meiosis, only one set of chromosomes gets incorporated into each gamete. Now अगर हम humans के gametes की ही बात करते हैं, okay, so what it is XX or XY. It is XX or XY. तो इसमें जो गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो 23 एक में आएंगे, 23 दूसरे में आएंगे. यहां पर भी 23 एक में आएंगे और 23 दूसरे में आएंगे. ठीक है, जब
गैमीट्स बनते हैं, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, लाइक जब फर्टिलाइजेशन होता है, सो ओनली वन ऑफ देम एंटर्स, दो गैमीट्स हैं, दो क्रोमोसोम्स हैं, यही क्रोमोसोम्स में गैमीट प्रेजेंट है। सो आउट ऑफ देम ईच गोज ना, तो अगर यहां से एक एक्स आता है और यहां से एक एक्स आता है तो टोटल ये 46 हो गया, और अगर यहां से एक एक्स आता है और यहां से वाई आता है तो भी ये टोटल 46 हो गया। ठीक है, सो द थिंग इज व्हाट कि सेल डिवीजन कैसा होता है, माइटोसिस और मियोसिस, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द पेरेंटल सेल इज हैप्लॉइड और द डिप्लॉइड। डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनको हम गैमीट मदर सेल कहते हैं, दे अंडरगो मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू द हाफ। Okay, then at the end of the meiosis only one set of chromosomes gets incorporated into each gamete. one set मतलब 23। ठीक है, now you will be surprised to know कि यहाँ पे already 23 chromosomes हैं, और वो 23 में से ही 23 कैसे डिवाइड हो रहे हैं। See, before a cell divides एक सेल साइकिल चलती है, सेल डिवाइड होने से पहले एक सेल साइकिल चलती है, उस सेल साइकिल के कई सारे फेजेस होते हैं। आई होप यू ऑल हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड में आपने सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ा होगा। क्या होता है वहां पे, इंटरफेज होता है, ठीक है, इंटरफेज के बाद G1 होता है, G2 होता है, S फेज होती है, फिर माइटोसिस आती है। ठीक है, मियोसिस जर्म सेल्स में होता है। तो एवरी टाइम बिफोर अ सेल डिवाइड्स इट डबल्स इट्स क्रोमोसोम नंबर। सेल डिवाइड होने से पहले अपने क्रोमोसोम नंबर को डबल कर लेती है। तो यहां पर भी बिफोर दिस सेल डिवाइड्स इट डबल्स इट्स क्रोमोसोम नंबर। तो टोटल कितना हो जाता है 46। ओके, उस 46 को ये हाफ हाफ दोनों में डिवाइड कर देता है, बट इट हैपेंस ओनली इन द गैमीट फॉर्मेशन, नॉट इन द अदर सेल्स। जबकि बाकी सेल्स में इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो वो 46 को अपना डबल करते हैं एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट। नेक्स्ट, अब गैमीट्स का फॉर्मेशन तो हो गया, गैमीट्स बन चुके हैं। ठीक है, अगर हम फ्लावर की बात करें, सपोज दे आर यूनिसेक्सुअल। ओके, तो एक फ्लावर में तो गैमीट्स बन चुके हैं, लाइक दिस इज वन फ्लावर एंड दिस इज अनदर फ्लावर। ठीक है, इस फ्लावर में गैमीट फॉर्मेशन हो चुका है और इस फ्लावर में भी गैमीट फॉर्मेशन हो चुका है। यहां पर क्या है, ये स्टेमिनेट है। स्टेमिनेट मीन्स इट कंटेन्स ओनली व्हाट, इट कंटेन्स द मेल गैमीट्स। ठीक है, क्योंकि स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड दिस इज पिस्टिलेट। पिस्टिलेट मीन्स इट कंटेन्स द ओवम। ओके, फर्टिलाइजेशन किसका होना है, मेल गैमीट्स आर गोइंग टू फर्टिलाइज द एग। प्लांट्स के केस में हम उसको एग कहते हैं, और अगर हम एनिमल्स के केस की बात करें सो इट इज स्पर्म और द ओवम। ओके, तो यहां से यहां दोनों को पास आना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन ऐसे ही नहीं हो जाता, जब गैमीट्स दोनों पास आएंगे तभी तो फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। सो व्हाट इज दैट, द नेक्स्ट प्रोसेस, द नेक्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो कि रिक्वायर्ड है बिफोर फर्टिलाइजेशन, वो क्या है, वो गैमीट ट्रांसफर है। मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट बन गए, गैमीटोजेनेसिस ओवर हो गया। उसके बाद compatible gametes must be physically brought together to facilitate fusion। दोनों को पास आना जरूरी है जिससे कि फ्यूजन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, और फर्टिलाइजेशन को ही हम सिंगैमी कहते हैं। इसी फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, इन फ्यू फंजाई एंड एल्गी, कुछ फंजाई और कुछ एल्गी ऐसे हैं जिनमें दोनों ही गैमीट्स मोटाइल हैं, दोनों ही गैमीट्स मोटाइल हैं। दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडेड विद द फ्लैजेला सो दैट दे कैन reach at a particular site where the fusion can takes place. Okay, अगर दोनों गैमीट्स मोटाइल हैं तो दोनों एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर
पहुंचकर वहां पर फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। या तो ओवम एग के पास चला गया या एग ओवम स्पर्म के पास चला गया या स्पर्म जो है वो ओवम के पास आ गया। ठीक है, अगर दोनों मोटाइल हैं तो दैट इज द केस। और ऐसा किसमें होता है? फंजाई में, कुछ फंजाई में और एल्गी में, जहां पे दोनों गैमीट्स मोटाइल होते हैं। सो दे आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर एंड फ्यूजन और सिंगेमी अकर्स। ओके, बट what happens in heterogametic condition? heterogametic condition means जहां पर एक गैमीट जो है वो मोटाइल है, whereas another one is non मोटाइल। ओके, ये कौन सा है? मेनली होता है ओवम और द एग, ओवम और द एग। ठीक है, ये हो गया स्पर्म। ठीक है, एनिमल्स के केस में भी अगर हम बात करते हैं या कुछ और प्लांट्स, हायर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, लाइक कुछ एल्गी हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स हैं और कुछ टेरिडोफाइट्स हैं। एक्वेटिक प्लांट्स हैं सारे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स दे आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, दैट मीन्स दे नीड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अदरवाइज दे आर द टेरेस्ट्रियल। ओके, सो हीट्रोगैमेटिक कंडीशन में क्या है? मेल गैमीट तो मोटाइल है, ठीक है, जबकि जो फीमेल गैमीट है दैट इज नॉन मोटाइल। दैट मीन्स सम मीडियम मस्ट बी देयर। अब वहां पे किसी मीडियम का होना रिक्वायरमेंट होगा जिसके थ्रू मेल गैमीट्स मूव करेंगे। कि कैसे पहुंचेंगे? मूव तो कर रहे हैं, बट वेयर द फीमेल गैमीट इज प्रेजेंट, वेयर दे हैव टू गो, ये तो पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या है? वाटर एक मीडियम की तरह एक्ट करता है। ये ऐसे स्विम करेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे कि पैरों से चलकर ये कहीं पहुंच गए। फ्लैजिला है उनके पास, ठीक है, दे हैव टू स्विम, तो उसके लिए भी सम मीडियम मस्ट बी देयर। तो इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, देयर वाटर एक्ट एज अ मीडियम। वहां पे वाटर एज अ मीडियम एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? लाइक दे रिलीज देयर गैमीट्स देयर, वो अपने गैमीट्स को रिलीज कर देता है। मेल गैमीट जो मेल होता है वो अपने मेल गैमीट्स को रिलीज कर देता है वाटर में, एंड दे रीच टू द फीमेल एग एंड फर्टिलाइज इट देयर। क्योंकि जो फीमेल एग है वो मोटाइल नहीं है, सो इट विल रिमेन देन एंड देयर। दिस मेल गैमीट हैज टू रीच टू द फीमेल गैमीट। ओके, जैसे कि अगर आपको याद हो, एंथेरोजॉइड्स एंड आर्किगोनिया, ठीक है, एंथेरोजॉइड्स हम बोलते हैं प्लांट्स के केस में मेल गैमीट्स को, ओके, एंड आर्किगोनिया हम बोलते हैं फीमेल गैमीट्स को। सो दीज एंथेरोजॉइड्स दे रीच टू द archegonia. Archegonia is the archegonia is the female reproductive structure. Their egg is present. It's not female gamete, it is a female reproductive structure. Okay, now a large number of the male gametes however fail to reach the female gametes. Okay, अब ऐसा तो नहीं है कि मेल गैमीट्स रिलीज कर दिए तो उनको सिखाकर पढ़ाकर भेजा गया है कि आपको वहीं पे जाके फर्टिलाइज करना है, आपको वहां आर्किगोनिया तक पहुंचना है और वहां पे जो एग है उसे जाके फर्टिलाइज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है? बहुत सारे जो गैमीट्स हैं दे गॉन वेस्ट। ओके, जब बहुत सारे गैमीट्स वेस्ट हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स हाउएवर फेल टू रीच, दैट मींस कई सारे गैमीट्स जो होते हैं वो फीमेल गैमीट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। दैट्स व्हाई अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्वेश्चन अराइजेस लाइक कि कोई श्योरिटी तो नहीं है कि जाके वहीं पे फर्टिलाइज करेगा, तो बहुत जो गैमीट्स रिलीज होते हैं काफी सारे तो वहां पहुंच ही नहीं पाते, वाटर करंट के साथ कहीं और फ्लो कर गए। ठीक है, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? सो टू कंपनसेट दिस, ज्यादा रिलीज करेंगे, कुछ तो पहुंचेंगे वहां पर, कुछ तो फर्टिलाइज करेंगे। सो टू कंपनसेट दिस लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स, कई सारे मेल गैमीट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इन कंपैरिजन टू द फीमेल गैमीट्स। फीमेल गैमीट्स कम होते हैं बट मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। ओके, नाउ इन सीड प्लांट्स, अब बात आती है सीड प्लांट्स की।
ऐसे प्लांट्स जिनमें की सीड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वहां पे मेल गैमीट कैसे पहुंचते हैं फीमेल गैमीट तक, कहां बनते हैं? पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमीट एंड ओव्यूल हैज द एग। सी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको प्लांट का फ्लावर का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, ठीक है। फ्लावर जो होता है, इट इज द reproductive organ of the plant and that too sexual, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बाकी जो रूट, स्टेम एंड लीव्स हैं वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। फ्लावर्स में टोटल 4 अर्ल्स होती हैं, लाइक कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। कैलिक्स एंड कोरोला ये सब क्या है? ये सेपल्स और पेटल्स हैं। सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स मींस जो नीचे ग्रीन कलर की लीव्स आपको फ्लावर में दिखाई देती हैं वो सेपल्स होती हैं, और पेटल्स क्या होती हैं? जो कलरफुल लीव्स होती हैं फ्लावर की वो पेटल्स होती हैं, ठीक है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है? एंड्रोशियम है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, whereas this gynoecium is the female reproductive structure, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब जो एंड्रोशियम है, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम, दैट मीन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन है, कई सारे स्टेमन्स मिलके एंड्रोशियम बनाते हैं, ठीक है। तो एक जो स्टेमन है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट, ठीक है। एंथर तो क्या होता है? एक लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर एक स्वोलन पार्ट होता है, दैट इज एंथर, एंड ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये है फिलामेंट, ठीक है। जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है वो है फिलामेंट और उसके ऊपर ये जो स्वोलन पार्ट आप देख रहे हैं ये एंथर है, ठीक है। दिस एंथर एक्चुअली कैरीज द पोलन ग्रेन्स। इसी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं और इन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई होप अब यहां पे समझ में आ गया होगा कि पोलन ग्रेन्स क्या हैं और कहां बनते हैं। फ्लावर, फ्लावर में डिपेंड करेगा यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। उसमें अगर स्टेमिनेट है मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, पिस्टिलेट है मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो दोनों प्रेजेंट होंगे। इतना हम पढ़ चुके थे पहले, ठीक है। अब जो स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। तो जो एंथर स्ट्रक्चर होता है उसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बात हो गई मेल गैमीट्स की, ठीक है। अब फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट कहां बनते हैं? फीमेल गैमीट क्या है? पहली बात तो एग है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? इट इज कॉल्ड एज कार्पल और पिस्टल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ओके। इट हैज 3 पार्ट्स, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, ओके। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट ओव्यूल कंटेन्स द एग, दैट इज द फीमेल गैमीट, ओके। स्टिग्मा वो वाला पार्ट है जो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को। इन पोलन ग्रेन्स में क्या प्रेजेंट है? गैमीट प्रेजेंट है। वो गैमीट्स स्टाइल से होते हुए, पोलन ट्यूब ये जर्मिनेट होंगे, स्टाइल से होते हुए वो ओव्यूल के अंदर जाएंगे। ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सेक भी होता है, उसके अंदर एग मिलेगा, ठीक है। तो सीड प्लांट्स में क्या होता है? कैसे पहुंचेंगे मेल गैमीट्स? पोलन ग्रेन के थ्रू पहुंचेंगे। पोलन ग्रेन कैरी करते हैं मेल गैमीट्स और कहां पहुंचेंगे? एग तक, ठीक है। अब पोलन ग्रेन्स हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा,
ठीक है, पोलन ग्रेन में मेल गैमीट्स तो प्रेजेंट हैं, बट वो कैसे पहुंचेंगे, उसको पहुंचने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ओके, सो पोलन ग्रेन्स हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा। अब प्लांट्स की बात करते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। बाइसेक्सुअल प्लांट मींस जिनमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, ओके, उसमें मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल पीस, ओके, मटर का फ्लावर जो होता है, मटर का फूल जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, तो एक ही फूल में दोनों उस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यहां पे जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी। जब एक ही उसमें प्रेजेंट है तो वो तो बहुत इजी है। बाइसेक्सुअल मतलब ये भी हो सकता है कि बाइसेक्सुअल प्लांट्स की बात कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब एक ही प्लांट पे दोनों तरह के फूल आते हैं, स्टेमिनेट भी आते हैं और पिस्टिलेट भी आते हैं। अब अगर मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करूं, बाइसेक्सुअल फ्लावर मींस एक ही फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहां पे जो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का, इट्स वेरी इजी, इजीली वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। पोलन ग्रेन जब पहुंच जाएंगे जर्मिनेशन हो जाएगा, जर्मिनेशन होने के बाद उस पोलन ट्यूब के थ्रू वो गैमीट्स पहुंच जाएंगे ओव्यूल तक, फाइनली एग तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बट इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स मतलब एक पे मेल गैमीट्स बन रहे हैं और दूसरे प्लांट पे फीमेल गैमीट बन रहे हैं, तो यहां पर पॉलिनेशन फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड इट अकर्स थ्रू पॉलिनेटर्स। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बी इट इन द सेम प्लांट और इन अ डिफरेंट प्लांट। सेम प्लांट में होगा हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, डिफरेंट प्लांट में होगा तो हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन में तो इट इज इजी, बट अगर क्रॉस पॉलिनेशन होना है तो वहां पर पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ व्हाट आर द पॉलिनेटर्स? देखो यहां पर आप देख सकते हो व्हाट इट इज पॉलिनेशन। ये आपको एक फ्लावर दिख रहा है, ये रेड कलर के स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं, दीज आर द पेटल्स, दिस इज सेपल्स, ये थैलेमस जिसे रिसेप्टेकल भी कह सकते हो, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज द पॉलिनेटर, दिस इज द इंसेक्ट व्हिच इज पॉलिनेटिंग। ओके, तो पॉलिनेशन करने के लिए कई सारे पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेशन एजेंट्स होते हैं। व्हाट आर द पॉलिनेशन एजेंट्स? इट कैन बी थ्रू द विंड, इट कैन बी थ्रू द वाटर, इट कैन बी थ्रू द इंसेक्ट्स। विंड के थ्रू भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है, इंसेक्ट के थ्रू भी होता है। सो दीज आर द पॉलिनेशन एजेंट। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें वाटर के थ्रू होगा पॉलिनेशन, और बाकी जो टेरेस्ट्रियल है उनमें विंड के थ्रू या फिर इंसेक्ट के थ्रू होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि इंसेक्ट के थ्रू किस तरह से होता है। पोलन जो होते हैं, दैट मीन्स अब ये जो सुंदर सुंदर फ्लावर आप देख रहे हो, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्या चाहिए? उनको यहाँ से नेक्टर चाहिए। फलों जो फ्रूट होते हैं उनका जो जूस होता है, जो सैप होता है, वो ये लेते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, अट्रैक्ट कैसे होते हैं? फ्लावर के कलर से। जब फ्लावर उनको कलरफुल दिखाई देता है, उसकी उनको स्मेल भी समझ में आती है, तो वहां जाकर ये उस फ्लावर पे बैठ जाते हैं। व्हेन दे यूज टू सिट ऑन दैट फ्लावर, देखो ये पॉलिनेटर आया, किसके लिए आया? टू कलेक्ट द नेक्टर। सो व्हेन दे सिट्स ओवर द फ्लावर, पोलन्स ऑन एंथर, यहाँ पे जो एंथर दिख रहे हैं ये है एंथर, ये फिलामेंट है, ये सारे येलो कलर के दिख रहे हैं, ये एंथर है। जब ये उसके ऊपर बैठे, एंथर के ऊपर जब बैठते हैं तो एंथर जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं इनके विंग्स में। ओके, ठीक है, अब दे फ्लाई अवे, उन्होंने अपना नेक्टर ले लिया, उड़ गए। उड़ने के बाद दूसरे फ्लावर पे बैठ गए। ठीक है, अब दूसरे फ्लावर पे जब बैठे तो उन्होंने जो पोलन्स वहां से कलेक्ट किए, एंथर बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी वो रप्चर हो जाता है और उसके अंदर डस्ट टाइप के पोलन्स होते हैं। तो वो पोलन्स जब ये दोबारा यहाँ पर बैठेगा, वो एंथर रप्चर हो जाएगा और उन पोलन्स को यहाँ छोड़ देगा, किस पे? स्टिग्मा पे।
ठीक है, स्टिग्मा पे जब वो पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे तो क्या होगा, अब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे, पोलन ट्यूब बनाएंगे। पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेल गैमीट प्रेजेंट है। वो मेल गैमीट इस पोलन ट्यूब के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, फाइनली ओव्यूल के अंदर, जहां पर एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है और एम्ब्रियो सेक के अंदर एग प्रेजेंट है, तो ये फाइनली वहां पहुंच जाएगा। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस हाउ द पॉलिनेशन इज कैरिड आउट। ओके, नेक्स्ट थिंग कम्स, अब हमने पढ़ लिया गैमीटोजेनेसिस, पढ़ लिया फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, किस तरह से गैमीट का फॉर्मेशन होता है, हाउ द गैमीट्स आर ट्रांसफर, गैमीट्स का ट्रांसफर भी कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कम्स फर्टिलाइजेशन, हाउ फर्टिलाइजेशन इज डन। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स इज कॉल्ड सिंगैमी और द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिंगैमी है। ठीक है, हाउ विल यू डिफाइन इट, द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, दो गैमीट्स का फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसे हम सिंगैमी भी कहते हैं। एंड व्हेन द टू गैमीट्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज फॉर्म्ड, जाइगोट। जब दो गैमीट्स फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है एग है। ठीक है, कैसा है ये, गैमीट है, तो गैमीट्स कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड। स्पर्म आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड। फर्टिलाइजेशन हुआ, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन this sperm has fertilized this egg, so it has released its nucleus or its genetic constitution, so it results in the formation of zygote and this zygote is diploid, क्योंकि ये हो गया n ये और n ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया 2n, so this zygote is diploid, right, that zygote is diploid. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के भी टाइप्स हैं। क्यों है टाइप्स, फर्टिलाइजेशन हुआ कहां हुआ, बॉडी के अंदर हुआ या बॉडी के बाहर हुआ। ठीक है, तो इफ इट अकर्स आउटसाइड द बॉडी इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि हायर प्लांट्स में, तो जो अभी मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था कि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचे, ठीक है, वहां एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। पोलन ट्यूब बनने के बाद गैमीट्स पोलन ट्यूब से होते हुए कहां पहुंचेंगे, एम्ब्रियो सेक तक पहुंचेंगे जहां पर एग प्रेजेंट है। तो ये फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, इनसाइड द फ्लावर हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल कब होगा, जहां पर दोनों गैमीट्स जो मीडियम है वहां पर रिलीज कर दिए जाएं और वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस when the fertilization takes place inside the body, then it is called as internal fertilization. Okay, so on the basis of the location of fertilization, it is divided into two types. If it occurs outside the body, we call it as external, and if it occurs inside the body, we call it as internal. Okay, so this is all for today's class. Remaining we will continue in the next session. Till then, goodbye and take care.